Traveling to Hyderabad is always exciting for me. ये एक ऐसा शहर है जहाँ खाने वाले और खिलाने वालों की कमी नहीं। इस बार मैं हैदराबाद रमजान के समय पहुंचा और शहर का एक नया रूप देखने को मिला। The food which creates this frenzy across Hyderabad is Halim. While watching the crowds clamor for their favorite dish, I jumped in to participate. But then my mind also wondered about the genius of Halim. कहाँ से ये है आया और इतना पॉपुलर कैसे हो गया? So I invited Chef Shazia Khan to ask about Halim, and she surprised me with a wonderful gift, a wonderful book called Kitab Al-Tabiq, the oldest surviving Arab cookbook. आपको पता है जब आप वापस जाएंगे आपके पास ये नहीं होगी? That's okay. I have a It's library with you, there. so I can This is always for me. borrow it. मेरा जो सफर है ना ये करीज को डिस्कवर करने का, रीडिस्कवर करने का, उसके अंदर हलीम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। हम देखें रमजान के वक्त हलीम बनता है, साल के सिर्फ 30 दिन होता है या 29 दिन होता है। It was called harissa or haris in the Middle East, and came traveling to Hyderabad when the Arabs kind of joined the Nawab over there. Okay. जब वॉर चल रही थी तब ये बन रहा था जब Arabs ने इस डिश को बनाना शुरू किया सोल्जर्स के लिए. It was basically a very simple stew that was made with mutton and like wheat, barley, कभी-कभी rice with very basic seasonings, थोड़े से spices के साथ, and बिल्कुल a beautiful, pure, simple yet delicious dish. किताब अल-तबिक में जिस तरीके से, जिस इंग्रेडिएंट्स के साथ लिखा गया कि हरीस बनता है, आज उसे बनाते हैं। बिल्कुल। इसमें पानी डाल देते हैं पहले? जी, बिल्कुल। So we are making the most oldest version. So it's the most simplest also. क्या लिखा है सबसे पहले क्या करना है जी? It just says throw the meat and the wheat. थ्रो द मीट मतलब जेंटली हमें इसे डालना है। अगर बड़ी देग होती है ना इतनी, सो वन वुड हैव जस्ट थ्रोन द मीट। Yes. हम छोटी क्वांटिटीज नहीं, में पहले तो वैसे ही होता होगा ना शेफ, इतनी बड़ी आर्मी के लिए बनता था। हाँ। So I'm sure the dish was very big, जो अपना जो देग बोलते हैं उसको बहुत बड़ा बड़ी होता होती होगा। तो इट वाज नेवर जेंटली पोर और पुट थ्रो Throw इट। it down. And overnight ये पकता था तो शायद देग को चढ़ा देते थे लोग और ये रात भर बनता। पकता रहता। बिल्कुल। अगला जी? The wheat goes in. We can add a cinnamon stick in this ओके। one, so that इसका सारा flavor infuse हो जाए इसके पानी में। Shall I? या दैट्स इट। And last में जब ये बन जाएगा हम इसे घी के साथ थोड़ा और कुक करेंगे. So that's when the flavors are going to come together. It's going to bind everything together. Okay. This is like haris that we are making, and now as it traveled to Hyderabad, so they say that a lot of soldiers stayed back and they married Hyderabadi women. So that's when it converted from haris to halim, I'm guessing. So they started adding more spices क्योंकि ये बहुत bland है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल चिली नहीं है, तो they added more spices, थोड़े से pulses भी गए इसमें। हाँ, दालें भी जाती है हलीम में तो। Yes, दाल डाले गए, and then traditionally ये तो मटन में बनता था, अभी चिकन में भी बनता है। There is another version also, chef, जिसे खिचड़ा बोलते हैं हम। हाँ। So it's like from the similar family where again it's kind of like a stew जो बनता है mutton and lentil से, but they don't add wheat to it. इसमें rice जाता है। So that's also a very interesting dish, but similar, almost from the same family. या जो 6 निज़ाम थे हैदराबाद के, महबूब अली खान, शुरुआत वहाँ से हुआ, and then I think somewhere around in the 16th century it started taking different variations, like adding the dals and little more spices. And they say that, like we discussed, when the army came down and they joined the Nizam, that's when it started being made for the soldiers. अच्छा, इसमें लबाब आ गया है, बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। Let's check the mutton. Yeah, मतलब मीट इतना टेंडर होना चाहिए कि इसको आप टच करो। बिल्कुल। It should just mash, literally. Yes, There. and it's really soft and it's mashed. जैसे आप चला रहे हो ना इसे, आप इसमें ही इसको मैश कर दे सकते हो। ये घोट सकते हैं, हाँ, इसका बिल्कुल जो घोट सकते हैं। रेशा अलग हो गया, that is how it has to be. Lovely, yes. आजकल तो हम सिंपल करने के लिए इसको प्रेशर कुकर में भी बना देते हैं। हाँ। And just use a stick blender and mash up everything. वो तो बिल प्यूरी बन जाएगा। हाँ, जो नए जमाने वाला है। हाँ, पर ऐसा करने से ऑब्वियसली ये होगा कि पूरी डिश के अंदर जो मीट का फ्लेवर है इतना ज्यादा प्रोनाउंस हो जाएगा, मतलब यू रियली डोंट नीड टू हैव अ पीस टू गेट दैट फ्लेवर ऑफ द मीट। Because it's mixed with everything, so Porridge में हर एक निवाले के अंदर में, बिल्कुल हर बाइट में आपको you can taste the meat.
ये हो गया. I think all of the mutton is now Yes. done. Now I think it's the right time to add some ghee और फिर इसको चलाते रहेंगे. इतना तो बहुत है. That's a huge quantity. ना तो कम है. And this was not just made for soldier chef. जब ये हलीम बना मतलब इसमें और ज़्यादा ingredients डाल के it was like जी. a royal dish served by the Nawabs. I'm sure. मतलब that's how there is so much of variation that we see now. Salt check करते हैं. Some more or it's perfect? Perfect the way it is. Let me taste. मतलब ये भुनेगा तो और अच्छा होगा. Yeah. It's lovely, simple, very humble. और इसमें ऐसी चेप है. थोड़ी देर खाने के बाद होंठ चिपक रहे हैं. बिल्कुल. Because it's so strong on that marrow of the meat. इसको रखते हैं इधर. Yeah. और ये जितना पकता जाएगा उतना बढ़िया होता बिल्कुल जाएगा. बिल्कुल. Just one cinnamon stick and the whole room is like. So what would you prefer? हरीस ये वाला या हलीम आज का? If I have to go for a simple dish, this is more like a porridge. But थोड़ा और festive, थोड़ा उसको और मतलब royal करना है, अच्छा करना है, then I would say I'll stick to halim. I think this could very well be the obvious evolution of this dish कि जहाँ पर this is so good कि आपके ये daily diet का या celebrations का या रोज़ा खोलने का हिस्सा बन जाए and beyond a point you say कि यार इतना खा लिया ये अब इसके अंदर थोड़ी वेरिएशन करते हैं. नेक्स्ट एवोल्यूशन क्या होगा? Nobody knows. Nobody knows. I have a feeling कोई आएगा और करेगा यार ये हरीस और हलीम बहुत बढ़िया इसको थोड़ा हेल्दी बनाते हैं. The बन trend रहा is है there. chef already. Like They're all using those healthy millets curries? and they're Yeah. using millets now and doing a lot of variations to this dish Yeah. and making it more healthier. As someone who has perfected the art of Hyderabadi Muslim cuisine, Shazia preferred the halim to haris. ये हरीस टेस्ट में आज के हलीम से काफी डिफरेंट है. बट मैं समझता हूँ कि एवोल्यूशन और टेस्ट के नजरिए से इट इज अ ग्रेट पीस ऑफ इंस्पिरेशन फॉर टुडेज हलीम. आफ्टर द हरीस, obviously my next step was to see its next evolution, the halim. So I was in Hyderabad to understand Haris se Halim ke avatar ki historic journey. I landed up at the house of Hyderabad city historian Sajjad Shahid and the conversations were as delicious as the Halim. तो ये है हलीम जो घर पर बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है. So shall we? प्लीज. इसमें एक चीज और है. खोरमा यूज कीजिए. कोरमा जी. ये आपको जो बाजार में होटलों में मिलती है जी. हलीम, उसमें आम तौर पे रोगन डाल देते हैं ऊपर से. वो ये जो घर में बनती है ये जो है दही बघार के और बनाते हैं. बहुत ही मजेदार है. थोड़ा सा गुई है. एक बहुत ही रोबस्ट मटन का फ्लेवर है. चिकनाहट है. वो आई एम श्योर मटन फैट और घी दोनों है. जो प्याज है ब्राउन अनियन उसकी एक अपनी मिठास है. बाइट के लिए वो काजू है. खटास जो आप बता रहे थे कोरमा की, इट वर्क्स परफेक्टली विद दिस. आई थिंक आई विल हैव अ लिटिल मोर ऑफ दिस. इस डिश को बनाने के लिए पेशेंस बहुत चाहिए. जी, पेशेंस बहुत चाहिए. इसलिए घरों में आमतौर पे जो है लेडीज का काम नहीं होता है. लेडीज मसल पावर होता है, तो घर के लड़कों का काम होता था उसको घोटना जो कहते हैं. तो यार ये छोटे स्केल पे नहीं बनती है आमतौर पे, क्योंकि द लेबर दैट गोज इनटू इट इज नॉट वर्थ इट. जब तक इट्स अ फेस्टिव डिश. शादियों पे, स्पेशल ओकेजन्स शुरू में पे और आजकल शादियों में हो गई है वो. आमतौर पे शुरू में जो है घरों में दावत में कभी बन गई, मगर मोस्टली रमजान में जो है. ये बात तो बिल्कुल मैं समझता हूँ इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि ये अरब डिश है. अरब में भी कोई एक पर्टिकुलर रीजन? अरब में रीजन का इतना डिटरमिन नहीं कर सकते, लेकिन यमन, साउथ अरेबिया, वहाँ की कुजीन ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि वहाँ कल्चर्स रहे हैं, वहाँ सेटलमेंट्स रहे हैं और ट्रेड लिंक्स दूसरी जगहों से थे, जिसकी वजह से आया भी. मतलब तो सबसे पहले जो जिक्र हमको मिलता है ट्रेडिशनल ओरल ट्रेडिशंस और फोकलोर में, वो ये मिलता है कि एक चीज़ शुरू हुई थी खिचड़ा, वो भी बनता है आजकल. 10 मुहर्रम को कई चीज़ें हुई हैं. मार्टिरडम ऑफ हुसैन भी है उसमें. नोआज़ आर्क किनारे लगने का दिन भी 10 मुहर्रम है. तो थैंक्स गिविंग के तौर पे नोआ ने जो भी बचा था वो एक पॉट में डाल के उन्होंने. हैदराबाद में और कई फैमिलीज में ऐसा है कि वो खिचड़ा जो बनता है उसमें गोश्त नहीं होता है,
मैंने अपनी माँ से पूछा कि ये क्या बात है भाई। शी सेड के गोश्त हो ही नहीं सकता था क्योंकि हर जानवर के सिर्फ 2 थे। नोआ कुंट have slaughtered one of the at least तो किसी कोई जानवर को मार ही नहीं सकते थे। तो जो अनाज बचा था वो उन्होंने पॉट में डाल के पकाया। पांच हमारे यहाँ हमारे फैमिली ट्रेडिशन में 5 अनाज पड़ते हैं उसमें, जहाँ जो लेंटिल्स मतलब गेहूँ, चावल, दाल, कई चीजें मिला के खिचड़ा बनता है। उसी से मैं समझता हूँ दूसरे किस्म की उसी रिलेटेड डिशेस जो डेवलप उसके अंदर ऐड ऑन होनी शुरू हुई। हरीस जो आई उसमें व्हीट वाज द मेन। तो वहां पर भी इसका नाम हलीम था। वेल ज्यादातर वो लोग हरीस कहते थे इसको, हरीस या हरीसा कहते थे। हलीम भी मैं समझता हूँ अरबी ओरिजिन है। तो ये जो डिश है, जब हम मलाबार रीजन को अगर देखते हैं, वहाँ पर एक सिमिलर डिश है अलीसा, जो पाउंडेड मीट से और व्हीट से बनती है, लेकिन उसके अंदर कहते हैं कि कोकोनट मिल्क जाता है। तो केरला के तो लिंक्स प्री इस्लामिक पता नहीं हिस्ट्री में कितने पुराने जाते हैं। ट्रेड लिंक्स विद द अरब वर्ल्ड, स्पाइस ट्रेड वहीं से जाता था। अब नेचुरली 2 लोग कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कुछ सेटलमेंट्स भी बने उनके, कुछ आके लोग रहने भी लगे। तो जब अरब आके रहने लगे वहाँ तो नेचुरली उनकी खान पान की चीजें भी आई। आई एम श्योर कोई मलयादी खातून से किसी अरब की शादी हुई होगी तो उन्होंने, क्योंकि वहाँ कोकोनट जैसे हम टैमरिंड के बगैर, इमली के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, वैसे केरला वाला कोकोनट के बगैर जिंदा नहीं हो सकता। तो लोकल इन्फ्लुएंस आना तो जरूरी है। जो हलीम है या जो हरीस है या हरीसा है, वो आपके हिसाब से कौन सी सदी में हिंदुस्तान आया होगा लगभग? नहीं, हरीसा तो मैं समझता हूँ आप उसको ट्रेस करेंगे तो प्री इस्लामिक ओरिजिन्स हो सकते हैं उसके, और इस्लाम के आने के बाद साउथ इंडिया में तो आ ही गया होगा जो भी वर्जन वहाँ केरला में आया हो। जब अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ द सिंध हुआ, जब जो है अरब डिशेस आना शुरू हुई होंगी तो नॉर्थ में किसी शक्ल में वो आ गई होगी। और इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द रूलर वाज मुस्लिम और हिंदू और हुवर इट वाज, एवरी रॉयल पर्सना ऑफ द डेक्कन वाज गार्डेड बाय अरब्स। वो पूरे एक बटालियन मेंटेन करते थे। निजाम के पास तो थे ही थे, वो तो बात की बात है। पहले आप देखिए विजयनगर एम्पायर जो हिंदू एम्पायर है, 100,000 स्ट्रॉन्ग अरब प्रेजेंस इन विजयनगर। जो राजा लोग थे उनको डर होता था अपने ही लोगों से, तो ये अरब को लाते थे कि अरब यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, इनके चीफ को पकड़ लो, इनका अलग ही रूल्स है। Pay them, they will make sure that they keep it. So surprisingly, you will find the Arab settlement closer to the king's palace than even the temples, some of the major temples in Vijayanagar. This is so interesting, and जो coexistence है वो रहा, वो coexistence और tolerance एक दूसरे के लिए होने की वजह से खाने के अंदर इतनी उन्नति हुई। कई जगह मैंने ये भी सुना है, और मैंने सिर्फ सुना है, अभी तक चखा नहीं है, कि हलीम मीठा भी होता है। हैदराबाद स्टेट में कुछ थोड़े रूलर्स जो सबसर्विएंट टू द निजाम थे, स्टेट में स्टेट्स विद इन स्टेट्स थे। Okay. ये पुराने हिंदू राजास थे जो काकतीय जमाने से चले आ रहे थे, जिनको हैदराबाद में समस्थान कहते हैं। ये समस्थानों में सबसे बड़ा समस्थान वनपर्ती का था। Okay. और वनपर्ती के समस्थान के पास बहुत बड़ा बटालियन अरब्स का था। एक स्टेज ऐसा आया जब वो रिडेंडेंट हो गया, जरूरत नहीं थी वो, क्योंकि अंग्रेज आ गए थे वो सेरेमनी उन्होंने लाया था किसी वजह से। अब वो परेशान होने लगे कि इतने अरबों को मैं पैसे कहाँ से दूं। तो वो पहुंचे निजाम के दरबार में, उन्होंने कहा हुजूर ये अरब हैं और ये आपकी खिदमत में है, मैं पेश कर रहा हूँ। तो ही हैंडेड ओवर द एंटायर अरब बटालियन to the Nizam, which was brought here and settled in a place called Barkas. Barkas. गोश्त में मीठा करके खाना ये सिर्फ अरब कर सकता है, हम हैदराबादी नहीं कर सकते, कोई और वाला कर। तो वो लोग वो जो मीठी हलीम मिलती है, ये सिर्फ स्पेशलिटी थी बारकस की, क्योंकि वहाँ अरब पॉपुलेशन था, उसके पसंद करने वाले थे, न आपको क्लाइंटाइल की जरूरत। मैंने बारकस में मीठा हलीम ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ खास हाथ नहीं लगा। I don't know where it has got disappeared, but people I met had wonderful stories to tell me about their lineages, and their features narrated the history of legendary Barkas and story of Arab warriors now fading in oblivion. मीठा हलीम मिलता? इफ्तार से पहले इफ्तार से पहले लोग लेके पैक करके लेके जाते हैं, फिर रोजा खोलते हैं उससे। तो मीठा कैसे करते हैं? शक्कर है, घी है, शक्कर मतलब रोज चीनी या गुड़ वाली शक्कर? नहीं, चीनी। कहा जाता है कि सुल्तान सैफ नवाज जंग उनके निगरानी में हरीस हलीम बन गया। सैफ नवाज जंग वाज नॉट द फर्स्ट ऑफ हिज फैमिली। ये है अलगैती फैमिली, ये मुकरला के सुल्तान हैं। इनमें से कुछ लोग यहाँ आके
थर्ड निज़ाम, सेकंड निज़ाम या थर्ड निज़ाम के ज़माने में they joined the army. Over a period of time, they rose to be ranked among the nobility of Hyderabad. It goes to the credit of Saif Nawaz Jang कि उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे अरब खाना है, ये भी हम रखते हैं, आप देखिए खा के अच्छा पसंद आया तो आप खाइए. नोबिलिटी में उसको इंट्रोड्यूस करने का सहरा जाता है सैफ नवाज जंग, क्योंकि वो बीइंग एन अरब वो तो खाते थे. The halim that I had was outstanding with the right blend of flavors. सज्जाद भाई के हलीम में जब लगा कहानी का तड़का तो उसका स्वाद और भी बेहतरीन हो गया. I don't know how, but there is something about this storytelling that makes the dish taste much better. पर अब मैं हैदराबाद में हलीम की फ्रेंजी को समझना चाहता था. What is it that makes this dish an absolute favorite of Hyderabadis? So I traveled to Pista House, known for the halim. यहाँ रमजान के दिनों में एक मजमा सा लगता है. जब अरब से जो डिश आई थी, जब ये डिश हलीम स्वीट थी, मीठी थी हलीम. अब जैसा हैदराबाद में आई हो तो हैदराबाद में पहले 2 रेस्टोरेंट्स थे जो ये हलीम स्टार्ट करे थे. उसके बाद जो है मेरे फादर जो है 1997 में जो है पिस्ता हाउस खोले थे. उसके बाद जो 1998 में फादर जो है हलीम स्टार्ट करे. तो फादर जो है तू चेंजेस करे इसके अंदर. अब जो हलीम में जो है मेरे कार्डेमन है, लौंग है, बहुत सी चीज़ें जो है बढ़ गए और हम लोग इसमें दाल ऐड कर रहे हैं. इंडियन टेस्ट के हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं इसको. कितने दिन आपके यहाँ पर हलीम बनता है? रमज़ान के सिर्फ 30 डेज जो है हमारे पास हलीम अवेलेबल रहती है. और इस हलीम के अंदर कुछ तो ऐसी खास बात है कि इन 30 दिनों में यहाँ पर एक भीड़ उमड़ कर आती है जिसका एक ही एक मकसद होता है कि उनको हलीम खाना है. जीआई टैग मिलना मतलब हैदराबादी हलीम बनाने की एक तरीका है और उसी को जब आप फॉलो करेंगे तभी आप उसे हैदराबादी हलीम कह सकते हैं और वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही बनना चाहिए. जहाँ एक तरफ एक किताब में उसको लिखा गया, दूसरी तरफ आपने उसको जीआई टैग दिलवाया. आई थिंक this definitely is a morsel of history that we are tasting and eating today. It's wonderful that Halim comes from Haris and now has been able to get its own GI tag. That's how indigenous our curries are. Welcome to Curries of India. अरब वर्ल्ड और हिंदुस्तान का नाता प्री इस्लामिक रहा है ड्यू टू ट्रेड लिंक्स और इसी तरह हरीस के भी हिंदुस्तान में कई अवतार मिलेंगे. हलीम, खिचड़ा, मुदगली हरीस और केरला में अलीसा, जो कि रमजान में स्टेपल है मलाबार में बसे मापिला मुस्लिम्स का. सो टुडे इज अनदर डिश वेरी सिमिलर टू अरब हरीस कुक्ड इन मापिला होम्स. आज हम बनाएंगे कोरी अलीसा. ना इसे बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रोकन व्हीट, जिसे हमने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा है. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल रेसिपी. थोड़ा सा समय लेती है पकने में क्योंकि हमें चिकन को ऑलमोस्ट ओवर बॉईल करना है टिल द टाइम इट लीव्स द बोन आराम से. लेट्स कवर दिस और इसे अब हमें बॉईल करना है. इट हैज बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, स्पेशली ये जानना कि किस तरीके से अरब ट्रेडर्स हिंदुस्तान आए, वहाँ पर सेटल हुए, वहाँ पर उन्होंने शादी करी, अपनी एक फैमिली, एक नई कम्युनिटी को उन्होंने जन्म दिया. लेकिन उनका जो खाना था वो रिटेन हो गया. जो यहाँ के लोकल से उनका खाना वो भी रिटेन हो गया और इन दोनों के खाने को मिलाकर एक कंप्लीटली नई क्यूजीन बनी और अलीसा वही डिपिक्ट करता है. लुक एट द कंसिस्टेंसी. जो ब्रोकन व्हीट है वो अच्छे से पक गई है. इट्स थिकन्ड अप. एट दिस स्टेज ये जो चिकन है इसे हम निकाल देंगे, अलग रख देंगे. इस चिकन को हम अच्छे से श्रेड करेंगे. ऑन अ स्लो फ्लेम इसे अब हमें अच्छे से पकाना है.
सिनेमन अपना फ्लेवर रिलीज कर चुका है, इसे अब हम अलग निकाल कर रख सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिश क्योंकि केरला में इतने स्पाइसेस हैं, खाने में बड़े ही सेट रूल्स हैं कि पेपर जाता है, करी लीव्स जाते हैं, अदरक जाता है, लहसुन जाता है, लेकिन ये एक ऐसी डिश है जो वहीं की है, वहीं पर पहली बार बनी, लेकिन फिर भी हटके है। दैट इज हाउ दैट अरब इन्फ्लुएंस काइंड ऑफ कम्स थ्रू दिस डिश। अब इसकी भुनाई होगी करीबन 10 से 15 मिनट और, ताकि जो ब्राउन अनियन का फ्लेवर है इसके अंदर पूरी तरीके से बस जाए। ये तैयार है, इसको करेंगे बंद।